never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. I'll be taking number system. जितने भी लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. Very intriguing and interesting topic. So please pay good attention, be punctual और copy pencil साथ में रख लेना. Those who are really interested to do something good. Start करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, before starting this thing, let me remind you of something. Okay. Hello. Yeah. Prime numbers. What are those? Anyone? Yes, sir. So which is divisible by itself and one only. Okay, which does not have any factor apart from one and itself. ठीक है, one और अपने अलावा उसके पास कोई factors नहीं है. For examples. For example, I 2, can 3, 5, 7. 2, Sir, 3, 2, 3, 2, 5. 3, 5, 7, 7, 7 11, ये सब पता है? 7. Yes. 7, 13, 11, and so on. 17. तो वो खुद है या one है? And one thing you must be knowing, one is not the prime factor. Yes, sir. Neither Okay. prime nor composite. Okay, then next one is composite number. What do you mean by composite? Excuse me, sir. Yeah. It has more than two factors, I think. Yeah. Any doubts? Any problem? Sir, this is what chapter, sir? Numbers. Number system. So I'll you be will be covering teaching. the. Huh? You will be teaching number system. Yes. You have any problem? Sir, we were studying permutation, sir. So that's why I was asking. Anand sir is teaching you permutation combination, no? Actually, both the chapter will be done. Yes, sir. Anand sir will be taking permutation and combination. I'll be taking a number system. Yeah? Yes. Okay, sir. कोई problem है इसमें? Sir, No, sir. No. Okay. Simultaneously वो PNC पढ़ाएंगे और मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा. ठीक है? कौन की मेरे ख्याल से 2 क्लासेस हैं शायद? नहीं, अल्टरनेट डेज पे है. शायद मेरे ख्याल से मेरे पास मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे है, उनके पास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. या? Yes, sir. ठीक है. तो I'll be teaching you number system. Okay, what are composite numbers? The number which have more than हाँ, बोलो please. Which are Having not more than- divisible by 2. the more than two different Which have factors. हाँ, बोलो. So 2 or more factors. Which have more than 2. नहीं, which are more than 2 नहीं, could be 2 भी हो सकते हैं. जैसे you have 6, number 6. Yes, sir. 2 or more than. 6 is 2 into 3. Composite Yes. number. Numbers which are not prime. Exactly. Numbers which are not prime. Those numbers are known as composite numbers. Yeah, which can be expressed in the form of product of 2 numbers, 3 numbers or 4 numbers. जैसा भी है आगे. Those are composite number. Again, one is neither prime nor composite. ठीक है? तो 4, 6, 8, 15, 20 जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है. ओके? One is Yes. neither prime nor Yes. composite. What do you know about co-prime? Co-primes? Whose factor are prime numbers? Whose? Factors are prime number. sir, who has only one divisor? That is one. Co-primes. The numbers which have SCF Primes which have हाँ. P. Or the numbers which have 1 as an SCF. HCF. ठीक है. Common factor is 1 or SCF is 1. Suppose we have two numbers 2 and 3. Their SCF is 1. So they are co-primes. You can write 3 and 22. That is again co-primes. This pair is again a co-prime. 3b and 22. Nothing is common. SCF is 1. ठीक है. तो जिनका SCF generally जिनका SCF is 1, those numbers are co-primes. 4 and 6 are they co-prime? No. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sure. No, sir. Okay. Then we have perfect numbers. What do you mean by perfect numbers? Anyone?
when sum of the factors is exact to that number, like 6, 1 plus 3, 2 plus 3. Okay. Suppose, let me take one example. 6. Factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. If sum of all its factor excluding itself but including 1. Excluding itself मतलब 6 को अगर मैं हटा दूं, including 1. ये बाकी factors का sum, that is 1 plus 2 plus 3. Plus 2 plus 3. The number itself. Please, कहाँ से आवाज आ रही है प्लीज? हाँ, तो 1 plus 2 plus 3 is 6. Excluding the number, अगर बाकी factors का sum जो है number के बराबर है, तो those numbers are known as perfect numbers. ठीक है? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Example, suppose 28 is there. Factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14, 28. If I exclude the number itself 28, then sum of rest of the factors 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. If it comes out to be 28, then the number is perfect number. ठीक है? तो अगर मैं नंबर को एक्सक्लूड कर दूं और बाकी फैक्टर्स को सम कर दूं and that sum comes out to equal to the number, that number is known as the perfect number. Clear? Any doubt? Anyone? No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. The co-prime. हाँ, को प्राइम, दो नंबर जिनका HCF 1 है, जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं या उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है, उसको मैं को प्राइम कर रहा हूँ. जैसे 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1. 3 और 22 में कॉमन फैक्टर इज 1, लेकिन 4 और 6 में कॉमन फैक्टर इज नॉट 1. दोनों में 2 2 कॉमन है, तो दैट मींस 4 and 6 दे आर नॉट को प्राइम. को प्राइम क्या है? 3 22 2 3. को मतलब एक साथ लिखे हुए हैं, प्राइम तो आपको पता ही है. ठीक है, तो जनरली ऐसा नहीं कि दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर ही हो सकते हैं. इस केस में देखिए 3 and 22, 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 22 कंपोजिट है, लेकिन आपस में दोनों को प्राइम है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने अभी कराया. दिस मच इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me write one composite number n. This could be written as a to the power p into b to the power q into c to the power r. The total number of factors n will have p plus 1 into q plus 1 into r plus 1, where a, b, c, they are prime numbers and p, q, r, they are positive integers. If we have any composite number, capital N is equal to, it can be represented as multiply में कर सकता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि composite है. a to the power p into b to the power q into c to the power r, then the total factors of this number n will be given by p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. अब इसका मैं एग्जांपल लेके आपको एक बताता हूँ. देखिए, suppose the number is 6. This can be written as 2 to the power 1 into 3 to the power 1. 2 और 3 क्या है? यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं. पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से. तो a to the power p, that means p plus 1 1 plus 1. b to the power q, q plus 1 is again 1 plus 1. So 2 into 2 is 4. That means we have 4 factors, 6k. कौन कौन से? 1, 2, 3 and 6. तो किसी नंबर के अगर कंपोजिट नंबर के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, तो आई बी यूजिंग दिस फॉर्मूला p plus 1 q plus 1 r plus 1. इस केस में मैंने एग्जांपल किया है 6, तो 1 plus 1 is 4. तो दैट मींस वी हैव 4 फैक्टर्स, जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं 1 2 3 6. अब p plus 1 क्यों कर रहा है वो आप ध्यान से देखिए. 2 can take value from 0 to 1, multiplied by 3 can take value from 0 to 1. जैसे इसने लिखा है a to the power p,
तो p तो एक नंबर हो गया, प्लस a की पावर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 to p, तो p वैल्यूज होगी प्लस 0 वाली उसने एक ऐड कर दी तो उसने +1 कर दिया आपके लिए। इसी तरह b कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to q, q वैल्यू होगी प्लस 0 वाली उसने एक वैल्यू ऐड कर दी, q+1। अब इस केस में 2 to the power 1 और 3 to the power 1 है, तो 2 is starting from 0 to 1 and 3 is also starting from 0 to 1. That means 2 can take two values, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसी तरह 3 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो 0 हो सकती हैं या 1 हो सकती हैं। तो दो वैल्यूज इसकी हैं, दो वैल्यूज इसकी हैं, तो 2 into 2 4 लिख रहा हूँ, 4। इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता हूँ, देखिए 2 0 है तो 3 भी 0 है, 2 0 है तो 3 1 हो सकता है, 2 1 है तो 3 0 हो सकता है, 2 1 है तो 3 1 हो सकता है। फर्स्ट वन क्या है, 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये मैं समझा नहीं सर, ये हम कर क्या रहे हैं, मतलब सुन ही नहीं रहे हैं तो क्या कहां से करेंगे, क्योंकि आप ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। सर जैसे ये 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 1 होता है, पर इसका तो मतलब जो एग्जैक्ट नंबर है वो 6 आ रहा है, तो सर हमने ये इंक्लूड क्यों किया, लाइक 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 तो सर 6 है ही, तो सर हमने ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों लिया सर? किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए, जैसे सपोज वो नंबर है a to the power p into b to the power q into c to the power, एक फॉर्मूला गिवन है p+1 q+1 r+1। अब जो p के साथ वो 1 ऐड कर रहा है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे a to the power p, भाई a को a to the power p मतलब p फैक्टर्स हैं प्लस, लेकिन p से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 to p, तो p + 0 को उसने p+1 लिख दिया है। अब जैसे 6 को मैंने एग्जांपल लिया था, 2 to the power 1 3 to the power 1 1 + 1 1 + 1, इसका मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं 6 के, मैंने फॉर्मूले से निकाल दिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 वो फैक्टर्स उसने कैसे लिखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 की पावर 0 to 1 स्टार्ट हो रही है, 3 की पावर 0 to 1, तो इसका मतलब 2 या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है, 3 या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है, क्योंकि दो इधर हैं दो इधर हैं तो इनके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो दोनों 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो। दोनों Okay, 0 है तो फैक्टर क्या है 1, एक 0 1 है तो फैक्टर है 3, 1 0 है तो फैक्टर है 2, और दोनों 1 1 है तो फैक्टर है 6, जो मैंने आपके लिए ऊपर लिखे थे 4 फैक्टर, तो उसने वो ऐसे निकाले हैं 1 2 3 6। ठीक है, अब कोई डाउट पूछ लीजिए, आप बोलिए हाँ कोई डाउट है तो। नो सर। धन्यवाद। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं आपके लिए, सपोज वी हैव 24, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, पहले उसको किसमें 2 to the power 3 multiplied by 3 to the power 1, बिल्कुल प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लीजिए उससे, ताकि उसके लोएस्ट फॉर्म में जा ना सकूं। 2 to the power 3 मतलब 0 to 3, कितने फैक्टर्स हो गए होंगे, 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, कितना हो गया 8 तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं 8। छोटा है तो काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अब क्लियर है, तो किसी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए p+1 q+1 r+1। ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसकी जरा नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए मुझे। 36 कितने फैक्टर्स होंगे, 9 9 p+1 q+1, तो 2 जो है वो कितनी वैल्यूज ले सकता है, 3 0 1 0 to 2, 0 ले सकता है 1 ले सकता है 2 ले सकता है, दैट इज 2 + 1। इसी तरह 3 वैल्यूज ले सकता है, 0 ले सकता है 1 ले सकता है 2 ले सकता है, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए, आपने कितने निकाले, 2 + 1 2 + 1 9 फैक्टर्स हैं इसके। कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 हो गए 9। Yes.
यस Yes. सर हो गए ना। हाँ, आप बताइए कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो 36 कंपोजिट नंबर है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो गए, 2 + 1 2 + 1, और वो मैंने आपके लिए नीचे लिख दी है क्योंकि छोटा नंबर है तो मैंने लिख के बता दिया आपको 1 2 3 4 6 9 12 18 36. अब द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन, इसमें से कितने फैक्टर्स इवन है? अब यू टेल मी, कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब वो डिविजिबल बाय होगा 2 से। तो वो 2 से डिविजिबल हो या वो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, कम से कम एक 2 का मल्टीपल हो। जैसे 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर्स है, या तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं या वो 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 8 हो गया, 2 क्यूब हो गया, मतलब कम से कम एक 2 तो होना ही चाहिए। तो एक कंडीशन आ गई, इवन नंबर के लिए क्या चाहिए मेरे को? 2 कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हाँ, अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 to 2। और इवन नंबर के लिए वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 to 2, 2 तक ही जा सकता है, गिवन है। तो कम से कम एक 2 तो अवेलेबल होना चाहिए। 3 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो कंडीशन फॉर 3। 0 to 2, तो 2 कितनी वैल्यू ले सकता है? 1 to 2 1 and 2 2। 3 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 1 2 3। इसका मतलब 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है। कौन कौन से हैं वो? 2 4 6 12 18 36। क्लियर है? डाउट है अभी? अरे 1 to 2 वाली एक बार दोबारा बताओ। इवन नंबर कब होगा? जब 2 का मल्टीपल होगा। कम से कम एक 2 तो हो ही सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 8 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो जब इवन नंबर होगा तो एक 2 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 से। तो 2 to the power 0 वाली कंडीशन आपने हटा दी, आपने 2 को कहाँ से स्टार्ट करा? 1 से। कम से कम अब हर फैक्टर में कम से कम एक 2 तो हो गई। 2 to the power 1 to 2, या तो 2 to the power 1 होगा या 2 to the power 2 होगा। तो जब भी एक 2 प्रेजेंट होगा वो इवन बना देगा उसको। तो इसका मतलब 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 to 2 2 वैल्यूज, और 3 0 to 2 3 वैल्यूज। तो इसका मतलब 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवन है, जो मैंने आपको काउंट करके बता दिए। अब फैक्टर ऑड कब होगा? एनीवन? 2 होगा ही नहीं। ऑब्वियसली जब उसमें 2 प्रेजेंट ही ना हो, जैसे 3 5 7 2 का मल्टीपल नहीं हो, तो इसका मतलब 2 कहां से होगा? 2 एक ही वैल्यू ले सकता है, कौन सी? 0 0 0 2 उसमें अवेलेबल नहीं हो। हाँ, तो 2 की और 0 ही हो सकता है, या 2 बिल्कुल हटा दीजिए, तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही वैल्यू लेगा। कहाँ? 0 to 2 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3। तो इसका मतलब 3 नंबर ऐसे हैं ऑड है। कौन कौन से? 1 139 139, या टोटल फैक्टर्स मेरे पास 9 है, उसमें से अगर मैं इवन फैक्टर्स घटा दूं तो आई विल बी गेटिंग ऑड फैक्टर्स। ऐसे भी कर सकता हूं। अदर वे राउंड इज, अगर आपको ऑड लेना है तो इसका मतलब उसमें 2 अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो 2 आपने पूरा हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, बाकी फैक्टर्स काउंट कर लीजिए आप। और इवन है तो कम से कम 2 1 to the power होने चाहिए। क्लियर है दिस टाइम? नो सर दोबारा बता दो। अब बोलो क्या डाउट है? सर इवन और ऑड दोबारा बता दो, सर समझ नहीं आया। इवन नंबर कब होगा? जब 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 2 2 4 6 8 10, कम से कम एक 2 तो हो ही उसमें। तो एक 2 का मतलब एटलीस्ट 1 2 का मतलब 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 to 2, तो 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 उस केस में। 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, दोनों ही केस में एक 2 तो प्रेजेंट है ही। तो वो नंबर को क्या करेगा? फैक्टर्स को इवन बना देगा, जो मैंने आपको चेक करके ही बताया। और ऑड केस में क्या होगा? कोई भी 2 अवेलेबल, तो इसका मतलब 2 to the power 0 है, 2 की कोई भी पावर नहीं होगी। ये 2 into 3 कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया। 2 to the power 1 to 2, 2 कितनी वैल्यू ले सकता है? 1 ले सकता है या 2 ले सकता है। तो 1 to 2 मतलब दो वैल्यू ले सकता है। 3 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 वैल्यूज ले सकता है। तो दोनों मिलके कितनी होगी? 2 वैल्यूज ये ले सकता है, 3 वैल्यूज ये ले सकता है। 2 into 3 6। इसका मतलब 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है। 2 4 6 12 18 36। इस केस में देखो 2 कितने वैल्यू ले रहा है? 0, मतलब 1।
3 कितनी वैल्यू ले रहा है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, तो सिर्फ 3 वैल्यूज ले सकता है, वो मैंने लिख दी। तो ये 2 जो है ये 2 वैल्यू ले सकता है, 3 जो है वो 3 वैल्यूज ले सकता है। कितने फैक्टर्स होंगे जो स्क्वायर्स होंगे? फैक्टर स्क्वायर कब होंगे? जब 2 सर पावर पावर हाँ, जब उसकी पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी मैं उसको स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। स्क्वायर तभी होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है और 2 ले सकता है। 3 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है और 2 और 2 ले सकता है। 4 भी ले सकता था, 6 भी, 8 भी, लेकिन 2 तक अवेलेबल है। तो 2 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है और 2 ले सकता है, मतलब कि 2 वैल्यूज। 3 कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, मतलब 2 वैल्यूज। इसका मतलब देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच आर स्क्वायर्स। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? 36 1 One, 4 9 9, 36 सर 4 4, 9 1, 36 36 1, और 4, 1 हाँ 9, 36। इसका मतलब 4 फैक्टर ऐसे हैं जो स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर के लिए 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब 2 का मल्टीपल। क्यूब्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर क्यूब्स? क्यूब्स के लिए किसका मल्टीपल होगा? 3 सर 3 3। का इसका थ्री मतलब का कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है और 3 ले सकता है, लेकिन 3 तो है नहीं, वो 2 तक ही है। इसी तरह 3 कितने ले सकता है? 0 ले सकता है और 3 ले सकता है, लेकिन 3 तो है नहीं, 2 तक है। तो इसका मतलब एक नंबर ऐसा है जो क्यूब है। कौन सा? 1 1। अब कोई नंबर स्क्वायर्स भी है और क्यूब भी है, 6 का मल्टीपल हो। ऑब्वियसली। स्क्वायर 2 है, क्यूब 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 का मल्टीपल है। 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। तो 2 टू द पावर 0 और 6 नहीं है। 3 की पावर 0 और 6 नहीं है। इसका मतलब एक नंबर ऐसा है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। कौन सा? 1 1 1, ऑब्वियसली 1। एक फैक्टर ऐसा है उसमें 36 में जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। ठीक है, क्लियर इतना? यस यस सर। यस सर अभी पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम। ओके, कितने फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 6? कितने हैं? सर 3 3। 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है और 36। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। कैसे कैलकुलेट करूं? देखो, 6 के मल्टीपल के लिए 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। 2 कहां से स्टार्ट होगा? 6 के मल्टीपल, हाँ 1 से। एक 2 तो चाहिए, तो 2 कहां से जा रहा है? 1 2 कहां तक जा सकता है? 2 तक 2 तक, 2 तक अवेलेबल है। इसी तरह 3 का एक फैक्टर होना ही होना चाहिए, तो 3 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 2 2 तक तक। तो 2 फैक्टर इसके हो गए, 2 इसके हो गए। कितने हो गए? 4। 4 जो कि आपने करी दी है 6 12 18 36। तो 6 के मल्टीपल कितने हैं उसमें फैक्टर्स में? 4। 6 12 18 36। ठीक है, हाँ आप बताओ, कोई डाउट है तो? इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आगे कोडिंग वोडिंग में बहुत काम आएगा आपकी। सर लेकिन जैसे हमने अगर 2 ले लिया तो 2 की पावर 2 4 और 4 इंटू 3 तो 12 हो गया ना सर। कहाँ पर लिया? 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल सर कौन? थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते तो हाँ अभी लूंगा मैं एग्जांपल, पहले इसी में कोई डाउट बताओ मुझे आप। आप क्या कह रहे हैं? 2 टू द पावर कहाँ लिया मैंने, बताओ? बोलो, कोई डाउट है तो प्लीज। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप लिखिए। 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 5। चलिए अब बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके? सर 72 यस 72 30 72 70 72 72
हाँ, पहले वाले की हो गया आपके पास 3 नहीं 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 6 इज 72। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपने निकाल दी 72। अब 72 तो बहुत ज्यादा है, इतने सारे तो मैं लिख नहीं सकता, सीधी बात। अब मुझे बताइए इसमें से इवन फैक्टर्स कितने हैं? 54 इवन फैक्टर कब होगा? जब 2 कहां से स्टार्ट हो? 1 1 से। 1 to 2. 1 से 2 होगा। तो कितने हो गए? सर 54 हो गए। हाँ, इसके कितने हो गए? 1 2 3 3, इसके भी 3 9 और इसके 6, कितने हो गए टोटल? 54 तो इसका मतलब 54 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवन है उसमें। ऑड कितने होंगे? 18 मतलब 2 तो अवेलेबल ही नहीं है। ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया 6 18। ये ऑड हो गए। या टोटल में से मैं 54 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 18 आ गया। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क एनीवन। यस सर इवन बता दीजिए एक बार। इवन इवन नंबर कब होगा? जो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल जी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सब में एक चीज कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। इसका मतलब कम से कम एक 2 तो है ही। लेकिन जैसे 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, उसमें 2 2 है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि सब में एक 2 तो होगा ही, तभी वो नंबर इवन बनेगा। तो जब एक 2 होगा तो इसका मतलब 2 कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। एक 2 तो होना ही चाहिए उसमें कम से कम, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर के लिए 1 से स्टार्ट होगा। और ऑड में क्या है कि एक भी 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 मैंने हटा दिया, या 2 टू द पावर 0 कर दिए कि एक भी 2 भी नहीं है, तो वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ ऑड में। लेकिन इवन में 1 से स्टार्ट हो और कहां तक इवन है? 3 तक, तो 1 2 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, कितने स्क्वायर्स होंगे? 12 और कितने क्यूब्स होंगे? 4 सर प्लीज एक बार स्क्वायर्स का फंडा समझा हाँ मैं दीजिए। कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। भाई स्क्वायर कब होगा? 2 का मल्टीपल। हाँ, जब 2 का सर मल्टीपल। स्क्वायर 0 2 होगा 2 के लिए। स्क्वायर का मतलब है इसका मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, तो वो 2 का मल्टीपल हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। तो जैसे 2 है, 2 कौन सी वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है और 2 ले सकता है, तभी स्क्वायर बनेगा। या तो 2 की पावर 0 हो या 2 की पावर 2 हो, 0 मतलब 1 हो या 4 हो, तभी स्क्वायर बनेगा। लेकिन 2 की पावर 1 स्क्वायर नहीं बन सकता। इसी तरह 3 कितना ले सकता है? 0 ले सकता है और 2 ले सकता है। और 7 0 ले सकता है, 2 ले सकता है और भी ले सकता है, क्योंकि 5 तक अवेलेबल है। तो 2 0 2, 2 वैल्यू इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई। कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 12 आ गया। 12। तो उसका मतलब 12 नंबर या 12 फैक्टर्स ऐसे हैं 72 में से जो स्क्वायर्स हैं। जैसे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरह के 36 हो सकते हैं, ऐसे 12 हैं। ठीक है। सर हाँ सर क्या हम Yes, ये sir. निकाल सकते हैं कि हमारे कितने फैक्टर्स प्राइम है? कितने फैक्टर्स? प्राइम है 2 3 7 प्राइम के लिए तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि n कंपोजिट नंबर है। वो तभी हो तो सकता 2 है 3 जब, 7 हाँ वो प्राइम जो सही कह रहा है, वो तभी हो फैक्टर सकता है जब 3 की पावर 0 हो, 7 की पावर 0 हो, तो एक 2 मिल जाए मुझे। जैसे 2 टू द पावर 1, तो एक 2 मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा, एक 7 मिल 3 जाएगा। मतलब 3 फैक्टर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं 2 को बढ़ा दूंगा या 2 ले लूंगा तो वो प्राइम खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक 2 हो या एक 3 हो, एक 7 हो, तो 3 ही प्राइम ले सकता हूँ। जैसे 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्राइम खत्म हो जाएगा। 3 इंटू 7 21 होगा, खत्म हो जाएगा। या 2 की पावर ज्यादा ले लूंगा 4, तो प्राइम खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ 3 ही प्राइम हो सकते हैं, 2 3 और 5। ठीक है, मतलब ए बी सी जितने में आप ब्रेक कर रहे हैं उतनी ही हो सकता है। 1 2 3 तो मतलब 3, 4 में कर रहा हूं तो 4।
स्क्वायर के बाद क्या आ गया? क्यूब। क्यूब के लिए किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। 0 होना चाहिए, और 3 तो है इसमें। 3 में 0 है, 3 नहीं है। 7 में 0 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 3 हो सकता, 4 हो गया, 2 इसके हो गए, 1 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, कितने हो गए? 6 4 हो गया। मतलब 4 फैक्टर ऐसे हैं जो क्यूब हैं। ठीक है। कितने फैक्टर ऐसे हैं जो स्क्वायर भी हैं और क्यूब भी हैं? 2 टू द पावर 0 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 6 है नहीं। 3 की पावर 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 है नहीं। 7 की पावर 0 हो सकता है, 6 हो सकता है नहीं। कितने हो गए? इसका मतलब एक ही फैक्टर ऐसा है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी। 18। ठीक है, क्लियर? यस सर। ये स्क्वायर एंड क्यूब वाला बता दो। स्क्वायर एंड क्यूब कब होगा? जब 6 का मल्टीपल होगा। मतलब जिसका मैं स्क्वायर रूट भी ले सकता हूँ और क्यूब रूट भी ले सकता हूँ। जैसे लिखा है, आप सपोज 2 टू द पावर 6 लिखा है, नंबर क्या होता है? 64। जिसका मैं क्यूब रूट लूंगा तो 4 आ जाएगा, और जिसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 8 आ जाएगा। तो 6 क्या है? वो असल में 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, तो स्क्वायर भी ले सकता हूँ और क्यूब रूट भी ले सकता हूँ, स्क्वायर रूट भी। तो जिसके भी 6 के मल्टीपल होंगे, 6, 12, 18, 24, उस नंबरों का मैं स्क्वायर रूट भी ले सकता हूँ, क्यूब रूट भी ले सकता हूँ, या वो स्क्वायर भी हो सकते हैं और क्यूब्स भी हो सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 6 है 64, वो स्क्वायर भी है और वो क्यूब भी है। 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 21। कितने फैक्टर्स हैं जो 21 के मल्टीपल हैं? कितने? 54। अब 21 के मल्टीपल के लिए 3 इंटू 7, मतलब 3 भी होना चाहिए और 7 भी होना चाहिए, कम से कम एक। 2 वैल्यू ले सकता है, 0 2 सर 3। 4 होंगे। 3 ले सकता है, 1 2 2, और 7 ले सकता है, 1 2 5। कितना हो गया? 10. 40 कितना? सर 40 40। इसका मतलब 40 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 21 के मल्टीपल हैं। क्योंकि 21 में 3 इंटू 7 है, तो 3 1 से स्टार्ट होगा, 7 1 से स्टार्ट होगा। तो 3 1 2 2 जाएगा, 7 1 2 5 जाएगा, बाकी 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 हो गए। क्लियर है? यस। यस सर। कितने फैक्टर्स हैं जो 42 के मल्टीपल होंगे? फोर्टी टू का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। सर 30। मतलब हर एक के कम से कम 1 तो होने ही चाहिए। कितना? सर 21 के हाँ 21 के। सर 21 के फैक्टर सर 16 नहीं होना चाहिए, 16। कैसे बताएं आप? सर क्योंकि 3 और 7 मतलब 3 में 21 के मैक्सिमम 2 है, तो 7 भी 2 आ सकता आपने है। क्वेश्चन नहीं सुना। जो ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं 72, उसमें से कितने फैक्टर्स 21 के मल्टीपल हैं? यस सर। मतलब तो उन इसका फैक्टर्स से कितने फैक्टर्स 21 के मल्टीपल हैं, वो निकाल रहा हूं मैं। सर इस केस में सर 3 और 7 बराबर बराबर होना चाहिए, तो सर हमने 7 बराबर 1 to नहीं, 5 हाँ, क्यों लिया? 7 1 to 2 होना चाहिए ना। 3 की पावर 1 होनी चाहिए, 7 की पावर 1 होनी चाहिए। तो 3 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 1 से कहां तक जाएगा? वो 2 तक। 2 तक। और 7 कहां तक तो जाएगा? 7 में तो 1 से लेकर 2 तक जाना चाहिए ना। 1 से 5 तक जा तो रहा उसके है, बाद तो वो 7 का फैक्टर बन जाएगा। 1 to 5 जा रहा है। और 2 तो 1 में to कोई 5 क्यों जाएगा पर सर? हाँ, तो 1 to 5 नहीं, 1 to 2 जाना चाहिए ना उससे, क्योंकि 7 भी तब 2 बार होगा और 3 भी तब 2 बार होगा, तो सर 7 तो 21 कितनी बन बार जाएगा भी हो वो। सकता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर देखिए, 3 इंटू 7 स्क्वायर, क्या ये 21 का फैक्टर है? यस और नो? सर बिल्कुल है। सर है। हाँ, 7 कितनी बार भी लिख सकता हूँ, एक 7 होना ओके चाहिए ओके। कम से कम। 3 स्क्वायर यस सर। इंटू 7 स्क्वायर, क्या 21 का फैक्टर है? बिल्कुल है। यस। मुझे तो एक 3 और एक 7 चाहिए, बाकी कितने भी हों। तो जितने सारे फैक्टर्स हैं उसमें 3 इंटू 7 का फैक्टर होना चाहिए बस। उसके कितने मल्टीपल है वो निकालना है। तो 3 1 to 2 जाएगा, क्योंकि 2 तक ही गिवन है। 7 1 to 5 जाएगा, 5 के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब अगर मैं आपको कहता हूं कि 42 के मल्टीपल निकालिए तो 42 लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए, एक 7 होना चाहिए कम से कम। तो 2 जाएगा 1 टू 3, 3 जाएगा 1 टू 2 और 7 जाएगा 1 टू 5। कितना आगे मल्टीप्लाई करके 30 30। पहले वाले के 3, दूसरे वाले के 2, तीसरे वाले के 5, 6 इंटू 5 इज 30। तो मतलब 30 फैक्टर्स ऐसे हैं 72 में से जो 42 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट? नो सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा प्लस एक वो करूंगा, क्या कहते हैं, नोट्स भी कर दूंगा ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, एक बार आप रिवाइज भी कर लें। ठीक है, चलिए मैं कंपोजिट नंबर लिखता हूँ फिर आपके लिए। n is equal to a to the power p into p to the power q to c to the power r। अभी तक क्या निकाला था? नंबर ऑफ फैक्टर्स। सपोज आई हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। जो फैक्टर्स मैंने निकाला है उसका प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंपोजिट नंबर टू द पावर n by 2, where n is छोटा स्मॉल n is the number of factors। ठीक है, एग्जांपल 6, 2 to the power 1 into 3 to the power 1, कितने फैक्टर्स हो गए? 1 + 1 1 + 1, 2 into 2 is 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो विल बी गेटिंग। अब मैं इसको फॉर्मूला से करता हूँ। n कितना है? 6। स्मॉल n कितना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं? 4 4 5। प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कितना होना चाहिए चारों का? 36, जो कि आपने करके देख लिया एक बार। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कंपोजिट नंबर है, स्मॉल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। चलिए फिर जरा मुझे इसका प्रोडक्ट बताइए 48 का। प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 48। पहले तो उसके फैक्टर्स निकाल लूं, कितने हैं टोटल? कितने आ गए? कितना आ गया प्रोडक्ट तो पावर? 48 टू द पावर तो 5 by 2। 5 आ गए। ठीक है, क्लियर है? तो आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले भी रखना है बस। ठीक है, यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब अगर मुझे निकालना है सम ऑफ द फैक्टर्स, अभी तक मैंने निकाला प्रोडक्ट, तो मुझे निकालना है सम। तो फॉर्मूला विल बिकम a to the power p plus 1 minus 1 upon a minus 1 into b to the power q plus 1 minus 1 upon b minus 1 multiplied by c to the power r plus 1 minus 1 upon c minus 1. If I have to find out the sum, again मैं example लेता हूँ 6, 2 to the power 1 into 3 to the power 1. We have 4 factors and those are 1, 2, 3 and 6. उसका sum मैंने कर दिया तो this comes out to be 12. अब मैं फॉर्मूले से करता हूँ 2 to the power p plus 1, 1 plus 1 minus 1 divided by e minus 1, that is 2 minus 1, multiplied by 3 to the power q plus 1, that is again 1 plus 1 minus 1 upon 3 minus 1. So first one will become 2 square minus 1, 3 upon 1 multiplied by 9 minus 1, 8 upon 2. 2 4 is 8 and 4 3 is 12. ठीक है? ओके, क्लियर? Yes, sir.
अब सर सम ये निकालने के लिए भी हाँ बोले। सर ये सम ऑफ फैक्टर्स हैं क्या दोनों सम? हाँ जी, पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यू कैन फाइंड आउट, फिर उसका आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं फैक्टर्स का, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये सम करके कितना आ रहा है, ए टू द पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू बी टू पावर क्यू प्लस वन माइनस वन बी माइनस वन, इस वाले फॉर्मूले में रख के तो उनका सम भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लेके सॉल्व करके भी बता दिया। क्लियर? आपको डाउट तो नहीं? चलिए फिर ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए 18, जिसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालना है और सम निकालना है उसके फैक्टर्स के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड देन सम ऑफ द फैक्टर्स। का निकालना है। हाँ फैक्टर्स कितने आ गए? 6 हो गए 6। तो मैं जरा फैक्टर्स लिख देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। चलो 6 तो फैक्टर्स आ गए। प्रोडक्ट कितना आ गया? 18 to the power cube 3 18 हाँ 18 टू द पावर 18 क्यूब या 3, ठीक है, 6/2 हो गया वो। और सम कितना आ गया? 39। हाँ ठीक है 39। 39। आ रहा फॉर्मूला से? यस सर। यस सर। जितना भी है कितना है ये 2 to the power 1 into 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 to the 2 1 plus 1 minus 1 upon 2 minus 1 into 3 2 plus 1 minus 1 upon 3 minus 1, ये आ गया 3 into 13 13 आएगा 26/2 26/2 2 13 आएगा 13 into 3 is 39। ठीक है, वैसे भी ऐड करके 39 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको डाउट? यस सर। नो सर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स। मतलब किसी भी नंबर को मैं 2 के प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, 2 नंबर के a इंटू बी के, तो कितने ऐसे केसेस बनेंगे जब वो a और b आपस में कोप्राइम है। उसके लिए फॉर्मूला उसने एक डिफाइन करा है 2 to the power n-1। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज वी हैव 6, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 2 3 6। अब 6 लिखने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 into 6 और 2 into 3, और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 1 into 3 to the power 1। इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं? 2 और 3। तो जितने प्राइम नंबर्स हैं 2, वो ये स्मॉल n है। पहले केस में मैं फैक्टर्स ले रहा था, फैक्टर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें एक्सप्रेशन में। तो उसका मतलब 2 केस ऐसे हैं जो को प्राइम है, जिसमें नंबर 1 into 6 और 2 into 3 में। ठीक है? नहीं क्लियर? नहीं सर कोई सर एक बार लार्जर n कैसे डिटेक्ट एग्जांपल से हाँ मैं कर रहा हूँ। आपके लिए ये क्लियर है कि नहीं बताओ? डाउट है थोड़ा सा? मैं क्वेश्चन, हाँ मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। 48 है, कैसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपके पास कितने आ गए? 10। कितने प्राइम नंबर यूज कर रहा हूँ? 1 2। तो इसका मतलब 2 to the power n, स्मॉल n कितना हो गया? जितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं।
तो इसका मतलब दो केस ऐसे हैं प्रोडक्ट ऑफ दो को प्राइम्स के प्रोडक्ट में, दो ही केस ऐसे हैं। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, देखिए 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दो नंबर के प्रोडक्ट में, 6 into 8, ठीक, 12 into 4, 1 into 48, 3 into 16, 2 into 24, और कोई केस बचा? अब देखिए जित सपोज इतने केस और भी बन गए, इसमें से कितने केस ऐसे हैं जिसमें दोनों को प्राइम है? को प्राइम मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 है। क्या 6 और 8 को प्राइम है? नो नहीं। सर 12 और 4? नो सर नहीं। 1 और 48? यस यस सर 3 और 16? यस सर यस सर 2 and 24? नो सर नो सर इसका मतलब जितने भी केस बनेंगे 48 के ऐसे, उसमें दो नंबर ऐसे होंगे जो को प्राइम है, उनका प्रोडक्ट ये। तो ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब जितने भी केसेस बना रहा हूं उसमें से दो केस ऐसे हैं जो दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। अब क्लियर है या नहीं? यस सर। तो 48 को अगर मैं दो नंबर, अगर 48 को मैं दो नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता हूं, जैसे 6 into 8, 12 into 4, 148, 3 into 16, 2 into 24, या और भी केसेस बनेंगे, तो उन सारे केसेस में से सिर्फ दो केस ऐसे हैं जब वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। और इस केस में मैंने आपको बता दिया 1 और 48 एक है, 3 और 16 एक है, बाकी कोई भी जो है को प्राइम नहीं है। हाँ आप बताएं। सर जैसे 16 इंडिविजुअल तो को प्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 16 को जब एचसीएफ लेंगे तो बनाएगा तो वो को प्राइम है ना? हाँ, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों को प्राइम मतलब उनका एचसीएफ 1, दोनों का सर अगर करा जाए तो एचसीएफ बनाएगा। हाँ उनका एचसीएफ बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। ठीक है, वो तभी होगा जब देखो एक प्राइम ही होगा, तभी ये होगा, क्योंकि उसमें बाकी में तो कॉमन कहीं ना कहीं आना ही जाएगा। तो जितने भी केसेस मैं बना रहा हूँ उसमें से जो दो केसेस होंगे वो आपके पास को प्राइम है। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं निकाल सकता हूँ 2 to the power। सर इसमें 6 है जैसे, हाँ? तो 6 हाँ। जो आपने वाला पहला वाला बताया ना, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, सर इसमें अगर हम 1 into 2 लेते हैं वो भी तो को प्राइम है। नहीं तो 1 into 2 के बाद 6 नहीं आ रहा ना, 6 भी तो आना चाहिए। अच्छा, मतलब जो हमारा वो आना हाँ, चाहिए। जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर भी तो आना चाहिए। जैसे इसमें हर केस में 48 आ रहा है, आप देखो 48 के जितने केसेस बनेंगे, 6 के जितने केस बनेंगे, 1 into 6 है, 2 into 3 है, और भी, और तो बनते नहीं है, दो ही हैं, तो वो दोनों ही को प्राइम वाले हैं इस केस में तो चलो। लेकिन इसमें तो बहुत सारे केसेस बन रहे थे, 6 8 जाए 48 होता है, 12 4 जाए 48 होता है, हर केस में 48 ही आ रहा है। तो उस उनमें से जो मैं दो केस ऐसे हैं जो आपस में को प्राइम है। ठीक है, सर एक बार बता दीजिए की वैल्यू कैसे निकालनी है? सर इसमें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की जरूरत भी नहीं है ना, फिर हाँ तो ना, वो ऐसे जरूरत नहीं है आपको, मैं तो आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अगर मैं जैसे 48 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करता हूं तो कैसा बनता है? 6 into 8 48, 12 into 4 48, 1 into 48, 3 into 16 48, 2 into 24, हर एक में 48 आ रहा है। अब 6 और 8 को प्राइम नहीं है, 12 और 4 को प्राइम नहीं है, 2 और 24 को प्राइम नहीं है, 1 और 48 है, और 3 और 16 है। तो इतने सारे केसेस में सिर्फ दो को प्राइम है। तो ये केस निकालने के लिए उसने आपको एक फॉर्मूला दिया है 2 to the power n minus 1। यहाँ पर n क्या है? जितने प्राइम नंबर, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आप यूज कर रहे हैं वो है। जैसे इस केस में 1 और 2 है, तो 2 to the power 2 minus 1 मतलब दो केस ऐसे हैं, और वो दो केस आपने निकाल दिए। अगर एक और प्राइम नंबर होता तो 2 to the power 3 minus 1 हो जाता। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, एक और बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए, पाई n is equal to n 1 minus 1 by a 1 minus 1 by b। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी, वो सर जो इससे वो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सर n की वैल्यू कैसे फाइंड करें? अरे बड़ी देर में जाग जाते हो। ये वाली n, यस सर। जितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे इस केस में कितने कर रहा हूँ, 2 और 3,
तो n2 हो गया। अगर 2 3 5 और होता तो n3 हो जाता, 2 3 5 7 होता तो n4 हो जाता। n यहाँ स्मॉल n फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है जो 4 में लिख रहा हूँ, जिसके 4 इस केस में जो स्मॉल n है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जो आप यूज कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। जैसे इसमें 2 और 3 था सिर्फ, तो 2 लिख दिया मैंने। अगर 2 3 सपोज 5 और होता तो मैं 3 लिख देता। ओके सर, थैंक यू। सर तो 48 में क्या लिखेंगे? 48 में सर 48 में 2 यूज कर रहा हूँ और 6 में भी 2 यूज कर रहा हूँ, 1 और 2, तो दोनों में 2 n2 ही ले रहा हूँ। इसके भी 2 केस बने, इसके भी 2 केस बने। हाँ बोले सर। हाँ यदि सर नंबर कोई बहुत बहुत लार्ज नंबर हो तो उसमें सर हम कैसे पता करेंगे कि उसके फैक्टर्स में कितने प्राइम नंबर हैं? उसमें कितने को प्राइम्स है प्रोडक्ट? जी सर। सर इस फॉर्मूला के लिए तो हमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि उसके फैक्टर्स में कितने प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स को निकालने पड़ेंगे। 2 नंबर के प्रोडक्ट आपस में को प्राइम कितने हैं? ऐसे कितने केस हैं जो जी को सर, प्राइम? तो इसके लिए सर हम लोग तो फॉर्मूला ये इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सर। हाँ 2 टू द पावर n। तो इसमें सर ये जो स्मॉल n है सर वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। हाँ प्राइम इंटीजर्स है ये सर, तो प्राइम इंटीजर सर। हाँ ये तो तो जैसे आप सर 48 में तो हमें देखकर सर पता चल रहा है कि 2 और 3 दो प्राइम इंटीजर्स हम यूज कर रहे हैं। अरे तो किसी भी नंबर को पहले आप उसी में तो ब्रेक करते हो। फैक्टर निकाल लेंगे ना, पहले से फैक्टर निकाल लेंगे। पावर हम b ये और c देखेंगे करते ना हैं। जैसे कितने कोई नंबर बोलो आप, कोई भी नंबर बोलिए। ये सर नहीं कोई जैसे भी नंबर। बहुत लार्ज नंबर होगा सर तो उसमें मैनुअली तो सर हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं उसके। सपोज कोई बहुत बड़ा फैक्टर नंबर निकाल लेंगे ना। अरे सुनो, उसके फैक्टर भी तो बनाओगे आप। पहले तो पावर कुछ, फिर 3 की पावर कुछ, या हो सकता है 7 की पावर भी चले जाए, या हो सकता है 11 की पावर भी चले जाए। तो कितने यूज कर रहा हूँ? 1 2 कुछ भी 3 हो 4, सकता है, 4 होंगे यहाँ तो तो। 2 टू द पावर 4 माइनस 1, हमें तो बेस देखना है ना कितने 2 हैं। क्यूब, मतलब कि 8 ऐसे उसमें वो है प्रोडक्ट जो को प्राइम है आपस में। क्यों? ये सर उससे कोई मतलब नहीं नंबर कितना बड़ा, वो तो आप उसे वेक्टर्स बनाओगे ही। ठीक है। ये सर ओके सर, थैंक यू। अच्छा फॉर्मूला देखिए आप, n टू कंपोजिट नंबर है a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q। अगर मुझे नंबर ऑफ को प्राइम्स निकालने हैं टू n डेट आर लेस देन n, को प्राइम निकालने हैं किसी नंबर n के साथ जो n से छोटे हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? n 1 माइनस 1 बाई a 1 माइनस 1 बाई b। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए आप 6 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो पहले तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6, फिर 1 माइनस 1 बाई ए कितना है? 2, फिर 1 माइनस 1 बाई बी कितना है? 3। कितना आ गया ये? जल्दी 2 आ गया। इसका मतलब 2 नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है। अब आप देखिए मैंने क्या नंबर लिया था? 6। मुझे फैक्टर से मतलब नहीं है, 6 से नीचे जितने भी नंबर हैं वो आपने लिख दिए 6 तक। कहाँ ना 6 को छोड़कर 6 के नीचे क्या 1 जो है वो को प्राइम है 6 के साथ? यस। 2 क्या को प्राइम है 6 के साथ? नो सर। 3 क्या को प्राइम है 6 के साथ? नो सर। 4 क्या को प्राइम है 6 के साथ? नो सर। 5 क्या को प्राइम है 6 के साथ? यस सर। यस। इसका मतलब 6 से छोटे कितने केस हैं? 2। वो आपने निकाल ली इस फॉर्मूले से। तो कोई भी नंबर जब n गिवन है तो n से नीचे जितने भी नंबर है 1 टू n माइनस 1 मैं सब लिखूंगा, उसमें कितने नंबर n के साथ को प्राइम है वो निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन और करना है। सपोज मेरे पास है 12, तो फॉर्मूले के हिसाब से कितने नंबर को प्राइम होने चाहिए? 12 के साथ मैं लिखता हूं n हो गया 12। 12 के फैक्टर कितने बनते हैं? 2 स्क्वायर इंटू कितना आ गया? कितना?
जल्दी बताओ। फोर सर, फोर। 4। तो इसका मतलब अब मैं अगर 12 तक सारे नंबर लिख लेता हूँ, तो 12 से छोटे कितने को प्राइम होंगे? 1 क्या को प्राइम है 12 के साथ? यस सर। यस। 2 2 नो सर। नहीं, नो 3 सर। नहीं, नो सर। नो सर। नो सर। 5 नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। 6 नो सर। No, sir. 7 नो सर। यस सर। यस सर। 8 यस। नो सर। 9 No, नो sir. नो। 10 नो सर। 11 नो सर। यस सर। यस सर। 1 यस सर। 2 3 4। इसका मतलब 12 से छोटे 4 नंबर हैं जो 12 के साथ को प्राइम है, जो आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिए। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि n से छोटे n-1, 1 से लेके n-1 तक कितने नंबर्स हैं जो n के साथ को प्राइम है। तो इसमें फैक्टर्स का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर जो a और b है वो यूज कर रहा है। क्लियर हो गया? यस यस। सर। Yes, sir. चलिए यस सर। क्वेश्चन करके बताइए। sir. 18 हाउ मेनी नंबर्स ऑफ को-प्राइम्स टू n that are less than n? 18 से नंबर कितने छोटे हैं जो को-प्राइम है 18 के साथ? This can be written सर as 6। 2 into 3 square. सर 6। हाँ 6। 18 तो ये हो गया 1 minus 1 by 2 और 1 minus 1 by 3। कितना आ गए? कौन कौन से हैं? 1 2 3 और कौन सा होता है? 17 13 11 4 5। हाँ कौन कौन से हो गए? 1 5 7 11 13 13 17। तो 6 हो गए। ऑब्वियसली वो को प्राइम है किसके साथ? 18 के साथ। तो 1 से 18 तक जब लिखूंगा तो 6 नंबर ऐसे हैं 18 से कम जो उसके साथ को प्राइम है, तो इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर सकता हूँ।